Students, welcome to online tutorial classes. In today's online tutorial classes, we are going to study BSc IT SEM 5th paper number BIT C12, that is Data Communication and Computer Networking. And in data communication, today we are going to study about flow control. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्लो कंट्रोल के बारे में. फ्लो कंट्रोल, जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा, फ्लो को कंट्रोल करना. किसका फ्लो को? तो डेटा का फ्लो को. मतलब सेंडर सेंड करता है डेटा, रिसीवर रिसीव करता है डेटा. तो जिस स्पीड में सेंडर सेंड कर रहा है, क्या वही स्पीड रिसीवर भी रिसीव कर रहा है? ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सेंडर का सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अलग हो सकता है. उसी तरह से रिसीवर का कॉन्फ़िगरेशन मैच नहीं करे सेंडर का कॉन्फ़िगरेशन के साथ. तो इस केस में क्या होता है, डेटा जो सेंडर सेंड कर रहा है वो क्या हो सकता है, बीच में लॉस्ट हो सकता है, क्योंकि उसी स्पीड से अगर रिसीवर रिसीव नहीं किया डेटा तो डेटा हमारा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा. तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लो कंट्रोल के बारे में. सबसे पहले देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन इसका. सो व्हाट इज फ्लो कंट्रोल? इन अ नेटवर्क द सेंडर सेंड्स द डेटा and the receiver receives the data. But suppose a situation where the sender is sending the data at a speed higher than the receiver is able to receive and process it. Then the data will get lost. मतलब सेंडर जो है सेंड कर रहा है डेटा को और रिसीवर रिसीव कर रहा है डेटा को, लेकिन अगर सेंडर का डेटा सेंड करने का स्पीड अगर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू रिसीवर स्पीड ऑफ रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग द डेटा, देन द डेटा माइट बी गेट लॉस्ट. ओके, सो फ्लो कंट्रोल इज द मैकेनिज्म which controls the flow of data between sender and receiver. Okay, so flow control method will help in ensuring this. The flow control method will keep a check that the sender sends the data only at a speed that the receiver is able to receive and process. Okay. Now the flow control tells the sender how much data should be sent to the receiver so that it does not get lost. This mechanism makes the sender wait for an acknowledgement before sending the next data. There are two ways to control the flow of data. Number one, stop and wait protocol, and number second is sliding window protocol. फ्लो कंट्रोल में क्या होगा, सेंडर सेंड कर रहा है डेटा रिसीवर को, और फिर रिसीवर सेंड करता है क्या, एक्नॉलेजमेंट सेंडर को कि दैट द डेटा हैज़ बीन रिसीव्ड. ओके, एंड as the acknowledgement arrive at the sender side, it means that it is a confirmation that the data has been received by the receiver. So there are two protocol. Number one is stop and wait protocol. Number second is sliding window protocol. Okay, now we will study about these two protocols. The first protocol is stop and wait protocol. So in stop and wait protocol,
what happens? The sender sends the data to the receiver. Okay, sends the data to the receiver, and again the receiver sends the acknowledgement to the sender. Now the sender will not send the data again until it has received the acknowledgement. मतलब यहाँ पे सेंडर डेटा को सेंड करेगा, रिसीवर जब डेटा मिल जाएगा रिसीवर को, तो रिसीवर फिर एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा सेंडर को, और सेंडर जो है तब तक सेकंड डेटा सेंड नहीं करेगा रिसीवर को जब तक कि उसको जो पहला डेटा भेजा था उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाए। जैसे कि अगर आम एग्जांपल में देखें, हम लोग देखते हैं मैसेज सेंड करते हैं मोबाइल से, किसी को हमने मैसेज सेंड किया तो वहाँ पे हम लोग के पास एक सेटिंग रहता है जिसके थ्रू हम ये एक्नॉलेजमेंट ले सकते हैं कि रिसीवर को वो मैसेज मिला कि नहीं। अगर रिसीवर को मैसेज मिल जाता है तो हम लोग के पास एक एक्नॉलेजमेंट आता है दैट द मैसेज हैज़ बीन डिलीवर्ड टू द सेंडर। दिस इज़ नोन एज एक्नॉलेजमेंट। ओके, सो स्टॉप एंड वेट इज़ द सिंपलेस्ट flow control protocol. In this, the sender will send one frame at a time. एक समय में एक ही फ्रेम सेंडर सेंड करता है रिसीवर को, and wait for the acknowledgement. And wait for the sender sends the one frame at a time and wait for the acknowledgement from the receiver. When the sender gets the acknowledgement, then it will send the next frame or next data packet to the receiver and wait for its acknowledgement again, and this process goes on. ये इसी तरह से प्रोसेस चलते रहता है। जैसा कि डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे सेंडर ने एक फ्रेम सेंड किया, फ्रेम 0, रिसीवर ने फ्रेम को रिसीव कर लिया। जैसे ही रिसीवर को फ्रेम मिल गया, डेटा मिल गया, रिसीवर ने क्या सेंड किया? एक्नॉलेजमेंट सेंड किया। अब जब एक्नॉलेजमेंट सेंडर को मिल गया तब फिर से सेंडर ने सेकंड फ्रेम दैट इज़ फ्रेम 1 सेंड किया। फिर फ्रेम 1 जैसे ही मिल गया रिसीवर को, रिसीवर ने फिर एक्नॉलेजमेंट सेंड किया। इसी तरह से ये प्रोसेस चलते रहता है, इसलिए इसका नाम क्या है? स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। मतलब एक फ्रेम सेंड करने के बाद सेंडर को स्टॉप कर देना है डेटा सेंड करना, और एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करना है, इसलिए इसका नाम क्या है? स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। ओके, सो सपोज इफ एनी फ्रेम इज नॉट रिसीव्ड बाय द रिसीवर एंड इज लॉस्ट। मान लो सेंडर ने सेंड किया फ्रेम डेटा, लेकिन वो रिसीवर को नहीं मिला। सो द रिसीवर विल नॉट सेंड एनी एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि उसको मिला नहीं है डेटा, तो रिसीवर एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करेगा एज इट हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी फ्रेम। ऑल्सो अब एक्नॉलेजमेंट क्योंकि सेंडर को नहीं मिला है, तो सेंडर जो है वो नेक्स्ट फ्रेम को भी नहीं सेंड करेगा। सो द सेंडर विल नॉट सेंड द नेक्स्ट फ्रेम as it wait for the acknowledgement for the previous frame which it had sent. So a deadlock situation occur. यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेडलॉक हो जाएगा, मतलब आगे का जो डेटा सेंड करना था वो रुक जाएगा, एक डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा। सो टू अवॉइड सच सिचुएशन देयर इज़ टाइम आउट टाइमर। इसलिए अभी हमने डायग्राम में देखा कि यहाँ पे क्या लगा था? टाइम लगा था। टाइमर का देखो यहाँ पे क्या लगा है? टाइमर लगा हुआ है। मतलब कुछ टाइम फ्रेम के लिए सेंडर जो है वो वेट करेगा, मान लो 5 मिनट 10 मिनट के लिए वेट करेगा। अगर उस बीच में एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला देन इट विल सेंड द फ्रेम अगेन। वो जो पहला फ्रेम नहीं मिला था रिसीवर को वो फिर से सेंड करेगा। ओके, Now second protocol is
स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। क्या है? स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। As we saw that the disadvantage of stop and wait protocol is that the sender waits for the acknowledgement and during that time the sender is idle। जैसा कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में हमने देखा कि सेंडर एक फ्रेम सेंड करने के बाद वेट करता है एक्नॉलेजमेंट के लिए। अब जितना समय वो वेट कर रहा है एक्नॉलेजमेंट के लिए, उस समय सेंडर तो क्या हो गया? आइडल हो गया, कुछ उसको वर्क नहीं है। लेकिन स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में क्या होगा? वो सेंडर को वेट नहीं करना पड़ेगा, टाइम को यहाँ पे अच्छी तरह से यूटिलाइज किया जाता है। सो हेयर वी विल चेंज दिस वेटिंग टाइम इनटू ट्रांसमिशन टाइम। जितना देर यहाँ पे स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में वेट कर रहा था सेंडर एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने के लिए, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में क्या होगा? उतना टाइम में डेटा सेंड करेंगे और उसको एक बफर में स्टोर करके रखेंगे। सो देखो क्या लिखा है, अ विंडो इज़ अ बफर वेयर वी स्टोर द फ्रेम्स। एक विंडो एक बफर बना के रखा जाता है जहाँ पे जितना मान लो 5 फ्रेम भेजना है तो उस 5 फ्रेम को हम लोग सेंड कर दिए, वो बफर में स्टोर हो गया। अब जब वो 5 फ्रेम का हमको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट हम लोग विंडो को क्या करेंगे? घसकाएंगे, मूव करेंगे, ताकि नेक्स्ट फ्रेम फिर बफर में स्टोर हो सके। सो अ बफर इज मेंटेन्ड, ओके, ईच फ्रेम इन अ विंडो इज नंबर्ड। इफ द विंडो साइज इज n, then the frames are numbered from 0 to n-1. A sender can send n frames at a time. When the receiver sends the acknowledgement of the frame, then we need not store that frame in our window, as it has already been received by the receiver. So the window in the sender side slides to the next frame, and this window will now contain a new frame along with the previous unacknowledged frames of the window. At any instance of time, window will only contain unacknowledgement frame. विंडो में क्या क्या फ्रेम रहेगा? जो फ्रेम सेंड करना है वो रहेगा, और जो फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है वही फ्रेम सिर्फ विंडो में हमारा रहेगा। विंडो मीन्स बफर में रहेगा। जो फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट मिल चुका है उसको हम लोग विंडो से क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। देखो अभी एग्जांपल में देखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे डायग्राम देखो। नाउ सपोज द साइज ऑफ द विंडो इज 4। हमने विंडो का साइज क्या बनाया है? 4। ओके, सो द फ्रेम वुड बी नंबर्ड एज 0, 1, 2 एंड 3। फिर नेक्स्ट फ्रेम का क्या हो जाएगा? देखो फर्स्ट फ्रेम में है हमारे पास साइज कितना है? 4 मान लो, विंडो का साइज है 4, तो 0, 1, 2 एंड 3। नाउ द नेक्स्ट फ्रेम विल बी नंबर्ड फ्रॉम, नेक्स्ट फ्रेम फिर से क्या नंबरिंग होगा? उसमें भी 4 रहेगा, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इस तरह से ये फ्रेम चलते रहता है। नाउ इनिशियली द फ्रेम्स इन द विंडो आर, पहले क्या है हमारे पास? फ्रेम 0, 1, 2, 3 नंबरिंग है। नाउ द सेंडर स्टार्ट्स ट्रांसमिटिंग द फ्रेम। एक एक फ्रेम को सेंडर क्या करता है? सेंड करने लग जाता है। किसको? रिसीवर को। द फर्स्ट फ्रेम इज सेंड, देन सेकेंड एंड सो ऑन। इस तरह से एक एक फ्रेम सेंडर क्या करेगा? सेंड करते रहेगा। When the receiver receives the first frame, that is frame 0, then it sends an acknowledgement. जब रिसीवर को ये फ्रेम मिल गया तो रिसीवर एक्नॉलेजमेंट फिर से सेंड करेगा। When the acknowledgement is received by the receiver, sender, sorry, when the acknowledgement is received by the sender, then it knows that the
फर्स्ट फ्रेम हैज़ बीन रिसीव बाय द रिसीवर, क्योंकि 0 फ्रेम का हमको एक्नॉलेजमेंट मिल चुका है तो सेंडर को ये पता चल गया है कि फ्रेम 0 रिसीवर को मिल चुका है। एंड इट डज नॉट नीड टू कीप इट रिकॉर्ड सो द विंडो स्लाइड्स टू द नेक्स्ट फ्रेम। अब विंडो में क्या क्या रह जाएगा देखो, क्योंकि फ्रेम 0 का हमको मिल चुका था, अब क्या आ जाएगा, एक स्लाइड कर जाएगा ऊपर की तरफ। अब हमारे पास क्या रह जाएगा फ्रेम में सेंड करने के लिए, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3 एंड इस फ्रेम का फ्रेम 0, ये हमारे पास बफर में रहेगा। द न्यू विंडो कंटेन्स द फ्रेम 1, 2, 3 एंड 0। इन दिस वे द विंडो स्लाइड्स एंड हेंस द नेम स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। क्योंकि यहाँ पे विंडो स्लाइड कर रहा है, मूव कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। जैसा कि डायग्राम में भी देखो, एक हमारा फ्रेम का साइज क्या था, 4 था, तो हमने इसमें कितना फ्रेम रखा, 0, 1, 2 एंड 3। ओके, अब देखो सेंडर फ्रेम 0 सेंड किया तो उसका हमने एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, तो उसको हमने क्या किया, यहाँ से रिमूव कर दिया, विंडो से हमने उसको हटा दिया उस फ्रेम को। अब हमारे पास क्या क्या रह गया फ्रेम सेंड करने के लिए, क्योंकि साइज़ क्या है 4 है, तो 1, 2, 3 एंड नेक्स्ट फ्रेम का जो है वो क्या है 0। फिर नेक्स्ट फ्रेम सेंडर ने सेंड किया फ्रेम 1, तो उसको हमने सेंड किया, उसका जब एक्नॉलेजमेंट मिल गया तो फिर से ये क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा और हमारे पास फ्रेम में क्या रह जाएगा, 2, 3, 0 एंड 1 फ्रेम। इसी तरह से ये प्रोसेस जो है चलते रहता है, इसलिए इसका नाम क्या है, क्योंकि यहाँ विंडो मूव कर रहा है इसलिए इसका नाम क्या है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। ओके, so that's it for today students. Hope you have learned about flow control and stop and wait protocol of the flow control and sliding window protocol of the flow control.